कृतं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं वर्णललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्तिरहेतुकी त्वयि ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि कृष्ण। आज हम हरे पढ़ेंगे कृष्ण। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। प्रभु जी कल क्लास थी? नहीं, कल नहीं थी, तो आज से स्टार्ट किया है। सभी श्लोक रिपीट करिए। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा अजोऽपि अजोऽभिसंव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया संभवामि सम्भवात्मायया आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा अजोऽपि अजोऽभिसंव्ययात्मा सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् भूतानामीश्वरोऽपि सन् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया संभवामि सम्भवात्मायया आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् भूतानामीश्वरोऽपि ईश्वरोऽपि सन् सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया संभवामि आत्ममायया। सम्भवात्मायया। हरे कृष्णा। प्लीज ट्रांसलेशन और परपट पढ़िए इंग्लिश में और फिर हिंदी में। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient things, I still appear in every millennium in my original transcendental form, purport. The Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. He would surely have to touch his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. And yet, man often dare claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature as well as Swarupa or one's own form.
the Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity, change from one body to another. The conditional soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth in the material world. The living entity has no fixed body, but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body by his internal potency. In other words, Krishna appears in his material world in his original eternal form. With two hands holding a flute, he appears exactly in his eternal body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. Despite the fact Lord Krishna groans from childhood to boyhood and from boyhood to youth. Astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the same time, the Battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at the home or in other world. He had sufficiently aged by material calculations, still he looked just like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. Although he is the oldest person in the whole creation, past, present, and future. Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is in the same unborn eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. Factually, his appearance and the disappearance are like the sun's rising, moving before us, and then disappearing from our eyesight. When the sun is out of sight, we think that the sun is set, and when the sun is before our eyes, we think that the sun is on the horizon. Actually, the sun is always in its fixed position, but owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearances and disappearances of the sun in the sky. And because his appearance and disappearances are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal, blissful knowledge by his eternal potency, and he's never contaminated by material nature. The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still appears to take his birth in multi-manifestation. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without changes of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with 4 hands and the decoration of the 6 kinds of full opulences. His appearance in his original eternal form is his causeless mercy. According to the Vivashwaka dictionary, the Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearances, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between the form and self, or between his quality and body. A question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in this world. This is explained in the next verse. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। प्लीज हिंदी में पढ़िए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा।
उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्द में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष की आयु जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुत उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सब सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तु सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी पूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभान सामान्य जीव से भिन्न है तथा स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडैश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्ण आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर
रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे अध्याय का छठा श्लोक। यहाँ पे भगवान अपने दिव्य प्रकृति के बारे में व्याख्या कर रहे हैं और ये व्याख्या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है ये किसी और को होना, भगवान के अलावा किसी और को डायरेक्ट होना असंभव है। भगवान खुद ही खुद के बारे में जानते हैं। ये अर्जुन ने भी गीता में बोला है कि हे प्रभु, आप स्वयं ही खुद को जान सकते हैं। स्वयं आत्मानम आत्मान वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, ये श्लोक आता है गीता के 10वें अध्याय में, जहाँ पे अर्जुन को विभूति दिखाई भगवान ने और 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया। उस समय अर्जुन ने ये वाक्य बोला श्री कृष्ण को, स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आप खुद ही खुद को जान सकते हैं और किसी के द्वारा आपको जान पाना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए और प्रभुपाद जी ने भी एक स्टेटमेंट बोला है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि द इनफाइनाइट कैन बी नोन बाय मर्सी ऑफ द इनफाइनाइट। जो अनंत है, जो ज्ञान से परे है, वो खुद ही अपना ज्ञान दे सकते हैं। और जब वो खुद अपना ज्ञान देते हैं तभी हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है भगवान के बारे में। नहीं तो हम कुछ भी समझ नहीं सकते कि परमेश्वर, परमात्मा, भगवान जो पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, बनाते भी वही हैं, चलाते भी वही हैं, नाश भी वही करते हैं। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो सृष्टि को बनाने के लिए भगवान जो रूप लेते हैं ब्रह्मा का, विष्णु का रूप लेते हैं सृष्टि का पालन करने के लिए, और शिव का रूप लेते हैं सृष्टि का नाश करने के लिए। ये तीनों स्वरूप जो है श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और अन्य कई शास्त्रों में कृष्ण भगवान का वर्णन आता है। शिव पुराण में भी कृष्ण भगवान की स्तुति है कि कृष्ण भगवान ही आदि पुरुष है। और भगवान शंकर भगवान ने पद्म पुराण में भी कहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं। और सारे वेद, सारे उपनिषद भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है अध्याय 15 में, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। तो सारे वेद, सारी स्तुतियां, सारे उपनिषद भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसके बावजूद वो कृष्ण को जानने के लिए असमर्थ है, क्योंकि कृष्ण अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो श्री कृष्ण भगवान अनंत है, उनको जान पाना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। स्वयं कृष्ण भगवान भी खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कितने अनंत है और कितने बड़े हैं, पर अब तक श्री कृष्ण भगवान को ही खुद के बारे में पूरी तरह पता नहीं है कि वो कितने बड़े हैं। तो बाकी तो हम हमारी तो उसमें गिनती नहीं होती है। हमारा ज्ञान कृष्ण के बारे में तो समंदर में एक छोटी बूंद के बराबर भी नहीं है। स्वयं कृष्ण भी अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण सुबह अपने खुद के ऊपर ध्यान करते हैं और वो
ध्यान करते हैं कि वो कितने विशाल है और कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर समाये हुए हैं, और हर एक ब्रह्मांड का कार्य कैसे चल रहा है। हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा है और विष्णु है, शंकर है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर 33 कोटि देवता हैं, और हर एक ब्रह्मांड में सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस पे श्री कृष्ण खुद ही अपने अंदर उस पे वो ध्यान करते हैं। जैसे एक राजा होता है, राजा के अधीन बहुत सारे राज्य होते हैं, बहुत सारे नागरिक होते हैं, और राजा उन सबका ध्यान रखता है। उसी तरह ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण भगवान खुद के ऊपर ही ध्यान करते हैं और खुद ही जानने का प्रयास करते हैं कि वो कितने बड़े हैं, कितने विशाल। और श्री कृष्ण भगवान को भी पता नहीं है कि वो कितने बड़े हैं, वो खुद ही खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ लीलाएं हैं भगवान की, और भगवान अजन्मा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में, कि सबसे पहले तो भगवान कृष्ण अपने सभी अवतारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनको सब कुछ याद है, कौन से युग में कौन से अवतार में वो आए थे, उन्होंने कौन सी लीलाएं की थी, किसको क्या बोला था, किसको क्या उपदेश दिया था। जैसे गीता में ही इसी अध्याय में हमने शुरुआत में पढ़ा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ईश्वाकवे अब्रवीत। यही भगवत गीता की अमर योग विद्या लाखों साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दी थी। तो ये घटना श्री कृष्ण को याद है। और अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, मतलब अर्जुन के समकालीन है श्री कृष्ण। तो अर्जुन को लगा कि कृष्ण मेरे समकालीन है, तो वो मेरी तरह एक व्यक्ति है, एक साधारण पुरुष। पर ये गलत है, ऐसी सोच गलत है कि श्री कृष्ण साधारण पुरुष है। श्री कृष्ण योगेश्वर है, शाश्वत पुरुष है। ये अर्जुन को साक्षात्कार हुआ 10वें अध्याय में। तो अब तक अर्जुन को इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। अभी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, चौथा अध्याय चल रहा है, और अर्जुन कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण है कौन। और कृष्ण के बारे में जो धारणाएं थी मन में, वो धीरे धीरे करके बदल रही है। तो ये हमारे साथ भी होता है। हम जैसे जैसे गीता पढ़ते हैं और गीता को और गहराई से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान है कौन। एक मिनट प्लीज होल्ड करिए। हरे कृष्ण। तो जैसे जैसे हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें भी बहुत सारे तथ्य पता चलते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। जो हमारे मन में कुछ धारणाएं होती है भगवान को लेके, वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाती है। और जो गलत फहमियां हैं भगवान को लेके, जो गलत विचार है या कुछ अपूर्ण ज्ञान है, या कुछ ऐसे मन में धारणाएं हैं जो गलत है भगवान के बारे में, वो सब धीरे धीरे बदलने लगती है। और हमें समझ में आने लगता है कि एक्चुअली कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। तो फिर भी हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, बट हमारे मन में एटलीस्ट, कम से कम हमारे मन में जो गलत विचार है या गलत धारणाएं हैं, वो तो क्लियर हो सकती है, वो साफ हो सकती है। जैसे अर्जुन को भी लग रहा था कि कृष्ण समकालीन है, वो उन्हीं के कंटेम्प्ररी है। पर एक्चुअली कृष्ण समकालीन होते हुए भी आदि पुरुष, आदि पुरुष होते हुए वो इस युग में वापस प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है सूर्य का। सूर्य पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमेशा सूर्य तो हमेशा रहता है। पर हमारे अज्ञान के कारण हमें लगता है कि रात के समय सूर्य नहीं है और दिन के समय प्रकट हो गया। पर एक्चुअली रात के समय भी सूर्य होता है, पर दूसरे दुनिया के दूसरे भाग में होता है। और इस बात को हम भूल जाते हैं क्योंकि सूर्य हमारी नज़र से दूर चला जाता है।
अंग्रेजी में कहावत होती है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दृश्य से दूर हो जाता है तो हमारे मन से भी दूर हो जाता है, और जैसे ही वो फिर से दृश्य के सामने आता है तो फिर से वो हमारे मन में आ जाता है। इसीलिए गीता का और सभी वैष्णव आचार्यों का ये एक शिक्षा है, हर समय कृष्णा को याद करना चाहिए। चाहे कृष्ण हमारे समक्ष, हमारी दृष्टि के समक्ष हो या ना हो, पर कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण का जो स्मरण है, वो नित्य रूप से चलते रहना चाहिए। तो फिर हम कभी भी कृष्ण से दूर नहीं होंगे। इसी को कहते हैं गोलोक या वैकुंठ की चेतना। तो वैकुंठ में जो निवासी होते हैं उनकी चेतना इस तरह की होती है कि वो कृष्ण को कभी भी भूलते नहीं। चाहे कृष्ण उनके समक्ष है या नहीं है, वो हमेशा अपने हृदय में, अपने मन में उनका स्मरण करते रहते हैं, श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, उनका स्मरण कीर्तन करते रहते हैं, उनकी कथा का गुणगान करते रहते हैं। तो जब कृष्ण सामने होते हैं तो कथा का साक्षात अनुभव करते हैं, मतलब कृष्ण की लीला का साक्षात अनुभव करते हैं जब कृष्ण आंखों के सामने होते हैं। और जब कृष्ण नहीं होते हैं आंखों के सामने तो उनकी कथा और उनका नाम से वो कथा कर चर्चा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कृष्ण भगवान ने क्या किया, कौन सी लीला उन्होंने देखी, और फिर कृष्ण का गुणगान होता है और कृष्ण का नाम जप होता है, नाम कीर्तन होता है। यही वातावरण है गोलोक का, वैकुंठ का, कि कृष्ण का स्मरण हमेशा चलता है, चाहे कृष्ण नजरों के सामने हो या ना हो, और उन्हीं का जप कीर्तन सत्संग कथा चलती रहती है। वही जो गोलोक का जो वातावरण है वो इस धरती पे भी प्रकट हो जाता है जब हम नित्य रूप से कृष्ण का स्मरण चिंतन कथा करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, कीर्तन उनका नाम जपते रहते हैं। तो जब कृष्ण का नाम लिया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, तो वो साक्षात सामने हो ऐसा ही उसका फल होता है। तो ये जो चेतना है ये किसी शुद्ध भक्ति कृपा से ही मिलती है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी को भेजा गया है यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा, ताकि वो चेतना हमारे अंदर जागृत कर सके कि हर समय कृष्ण का स्मरण करना है। और कृष्ण हमेशा जीवित है, जीवित रूप में हमारे सामने ही है, हमें बस उनका स्मरण करना है। तो जैसे ही हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वो हमारे सामने जीवित हो जाते हैं, हमारे सामने लाइव हो जाते हैं। और सेम प्रिंसिपल, वही सिद्धांत गुरु पे भी अप्लाई होता है। जैसे ही हम गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु की शिक्षा पे चलते हैं, तो गुरु भी हमारे सामने लाइव हो जाते हैं। तो गुरु और कृष्णा दोनों एक ही तत्व है, दोनों परम तत्व, पर ब्रह्म तत्व है। और इसीलिए हम गुरु को भी जब वंदना करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, और गुरु का भी तिरोभाव या आविर्भाव ये सूरज की तरह होता है। उनका तिरोभाव भी हो जाए, अगर वो चले भी जाए हमारी नजरों के सामने से, पर फिर भी उनका स्मरण कीर्तन, उनको फॉलो करना, ये चलता रहता है। और उसी से हमको उनका कांटेक्ट होता है जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहते हैं कि भगवत गीता मतलब श्री कृष्ण की वाणी। और जब श्री कृष्ण की वाणी हमारे सामने है, ये साक्षात कृष्ण की वाणी है, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं गीता का, ये साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है। तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण हमारे सामने ही है। जब वाणी सामने है तो कृष्ण भी सामने है। तो उसी तरह से नीचे जो तात्पर्य लिखा है ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। जब हम ये तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी साक्षात हमारे सामने हैं। तो एक ही ग्रंथ में श्री कृष्ण और प्रभुपाद दोनों साक्षात हमारे सामने हैं, क्योंकि दोनों की वाणी हमारे सामने है। भगवान कृष्ण की वाणी हमारे सामने है और श्रीला प्रभुपाद की वाणी हमारे सामने है। हमें बस वाणी को पढ़ना है, उसको दोहराना है, उसको फॉलो करना है। तो मतलब कि हम साक्षात श्री कृष्ण और प्रभुपाद दोनों के साथ हम रह रहे हैं, वो हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यही संबंध हमें बना के रखना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु और कृष्ण से संबंध होता है वाणी से। जब हम वाणी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बोलते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं,
तो मतलब हम गुरु के और कृष्णा के साक्षात संपर्क में हैं, और गुरु और कृष्णा हमसे कभी भी दूर नहीं होते। इसीलिए प्रभुपाद जी और श्री कृष्ण, ये भगवत गीता जब तक हम पढ़ते रहेंगे, प्रभुपाद की वाणी पढ़ते रहेंगे, श्री कृष्ण की वाणी पढ़ते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, मतलब श्री कृष्ण भी साक्षात हमारे सामने हैं और श्रीला प्रभुपाद भी साक्षात हमारे सामने। तो फिर हमें किसी की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। श्री कृष्ण है और भगवान के जो प्रतिनिधि है प्रभुपाद, वो भी हमारे सामने है। जब दोनों हमारे सामने है तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। यही शिक्षा हमको यहाँ से लेनी है। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मुझे एक इस पे तो नहीं है, लेकिन मुझे एक भागवतम में एक पढ़ रहा था मैं, उसमें से मुझे थोड़ा पूछना था आपसे, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। मैं भागवतम का फर्स्ट स्कंद का फर्स्ट श्लोक में पढ़ रहा था, उसका जो पपट पढ़ रहा था उसमें से इसमें नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। जी। आई मीन उसका गायत्री मंत्र का अगर पूर्णिमा के दिन दान किया जाए तो भगवत धाम को वापस आता है। तो मैं आई मीन उसको पूछना था कि दान किस तरह का है, क्या? भागवतम का दान? नहीं, इसका गायत्री मंत्र में लिखा है, गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है भागवतम में, फर्स्ट फर्स्ट श्लोक के उसमें पॉपर्ट में। हाँ, पर दान कि किस चीज अगर का? गायत्री मंत्र इसमें एक्चुअली मैं अगर देखता हूँ, अगर पूर्णिमा के दिन गायत्री मंत्र का अच्छा हाँ, इस महान ग्रंथ का दान करते हैं। हाँ तो मतलब भागवतम का दान बोला होगा अच्छा, जी। हाँ भागवतम दान। जी, क्योंकि गायत्री अच्छा, इसको मंत्र। गायत्री मंत्र इसमें इंडिकेट हुआ है, जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है उसमें दीप्ता शुक्ल का इतिहास दिया गया है, क्या उल्लेख जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है हाँ, तो उसे। उसको भद्र हाँ, पूर्णिमा कहते हैं। भद्र पूर्णिमा के ओके। दिन भागवतम का दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती भागवतम का दान मैं समझा नहीं, इन द सेंस दान दान किस तरह है। के है? भागवत जो ग्रंथ है वो अगर आप किसी को दान देते हैं पढ़ने के लिए, ओके। उसको भागवत का दान माना जाता है। जो भागवत का जो ज्ञान है उसका दान माना जाता है। और इसमें कितने कितने स्कंद कितने कैंटो इसमें भागवतम में 12 टोटल? कैंटो है। भागवत में टोटल 12 कैंटो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का टाइम यहाँ पूरा होता है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अगला श्लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम। हरे राम राम राम, हरे कृष्ण प्रभु।